Okay, so I'm Dr. Gursimrat Singh, and I belong to Patiala city from Punjab state. I have cleared the UPSC exam four times in 2021, 2022, 23, and 24. I have served in various services. In 21, I got selected in DAN IPS, DANEPS, and I served as ACP Delhi for a year. In my second attempt, I got selected to IDS service. And then in my third attempt, I joined Indian Revenue Service IRS, and finally in this 2024 attempt, I have been allotted Indian Police Service, which was my first preference. So I'm here to talk about uh, UPSC, my UPSC journey, and key takeaways if it can help you in your journey. So by profession, earlier I did my graduation in MBBS, so I'm a doctor uh, from graduation. Then throughout my graduation, I started preparing side by side, and I gave my attempts in 21, 22, 23, and 24. So there were various questions which were sent, and that also I'll address, and I'll tell about my journey. And side by side, you can ask, the viewers can ask if there are some doubts. I'm ready to address that as well, side by side. So my journey was with my graduation. I prepared the basic books, that is NCRTs. Then I delved into the standard books, and finally I prepared my optional, which was Punjabi literature. uh, and then I gave the attempts uh, when I completed my syllabus, and side by side I did answer writing. So my key takeaways from my strategy are that you should be very consistent in your preparation, as it may be a long journey. It is not just a 1 year of preparation. It may take minimum 2 years to just cover the syllabus and the optional, and 1 year is the process of prelims, mains, and interview. So it may take long. So you the key quality required is perseverance and consistency. So you have to make your routine very consistent and very productive throughout your preparation, which will be very long. So to say, not just a month's preparation or 2 months preparation, it may span to 2 3 years. So that is the key takeaway for this exam, or the key strategy. And rest is understanding the nature of this exam. That is, it consists of prelims, mains, and interview. So that you can do through analyzing the previous year questions, PYQs, so that after completing the syllabus, what are the themes or what are the questions that are asked, what type of questions are asked by UPSC. So that will give you the idea, and that will re-strategize your preparation after you complete the whole syllabus. So that are my key takeaways. So I have a few list of questions that I will address, which are the basic questions asked by any aspirants. So uh, first question was, keep how do you prepare for prelims? So prelims and mains preparation is a side by side thing. You prepare the cover the syllabus. You don't do it in separate things, like कि prelims की तैयारी कर ली या mains की तैयारी कर ली. आपको इकट्ठे ही तैयारी करनी पड़ेगी प्रीलिम्स और मेंस की. प्रीलिम्स में बस ये है कि ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ क्वेश्चंस या फैक्ट्स जो होंगे वो आप ज़्यादा उस पर फोकस करोगे, और एमसीक्यू सॉल्व करोगे. पीवाईक्यूज के अलावा जो कोई अगर टेस्ट सीरीज है वो आप लेके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स. मेंस के आप साथ साथ जब आप एक सब्जेक्ट कवर करते हो, एक एक सब्जेक्ट वाइज जीएस वाइज आप आंसर्स लिख सकते हो. अगेन प्रीवियस ईयर आंसर्स को आप पहले लिख सकते हो. आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी GS1, GS2, GS3, GS4 के प्रीवियस ईयर्स के बाद. फिर आप फर्दर आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हो. उससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी. कई फिर एक ये भी की क्वेश्चन होता है कि कब स्टार्ट करें आंसर राइटिंग. आई बिलीव एज सुन एज पॉसिबल, वंस यू कंप्लीट द सिलेबस. एक बार अगर पूरा सिलेबस हो जाए तो आई थिंक स्टार्ट कर देनी चाहिए. साथ साथ भी कर सकते हो. अगर GS1 एक सब्जेक्ट खत्म हुआ है, उसके आंसर्स लिख लिए, सो यू कैन डू इट GS वाइज. आई सजेस्ट कि GS1 के सब्जेक्ट जब खत्म हो गए तो GS1 के आंसर्स लिखने शुरू कर दिए, फिर GS2 के, GS3 के, GS4 के, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. जब पूरा सिलेबस होगा वही आंसर्स आपके बेटर हो जाएंगे अगर उन आंसर्स को दोबारा देखोगे.
एंड एसेज यू कैन डू मे बी वंस अ वीक, एक एक ऐसे लिख दिया आपने, क्योंकि 2 एसेज भी लिखने हैं आपको एंड एक ऐसे का पेपर है। तो ऐसे आपका प्री मेंस का प्रिपरेशन साथ-साथ चलता रहेगा जब आप सिलेबस कवर करते रहोगे। दैट विल बी द हाउ यू गो अबाउट इट, कैसे करनी है, कैसे तैयारी है। So then key question which aspirants ask is book list, वो आई थिंक सब जगह अवेलेबल है। जो मैंने फॉलो की है मोटी मोटी वो बता सकता हूँ मैं, कि पहले क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं था ह्यूमैनिटीज़ का, सो आई वाज एमबीबीएस ग्रेजुएट एंड प्लस वन प्लस टू में भी पीसीबी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी। तो पहले तो एनसीईआरटी की बुक्स से आपका जो बेसिक है वो कवर हो जाता है। सो एनसीईआरटी 6 to 12 और 9 to 12 आप हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड कल्चर की, अब ये सब एनसीईआरटीज कवर करो 6 to 12 या 9 to 12। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जा सकते हो फॉर विच एवरी वन नो। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक प्रेफर होती है, तो वो कवर कर सकते हो। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट, बट यू कैन गो विद बुक्स सच एज बिपिन चंद्रा मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम भी लोग यूज करते हैं, ये बुक्स भी आप कवर कर सकते हो। देन यू कैन गो विद एंशिएंट हिस्ट्री की आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा मेडिवल हिस्ट्री की। दीज बुक्स आर ऑल्सो गुड इफ यू वांट टू गो इन अ बिट डिटेल अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव इनटू द प्रिपरेशन। तो उसके बाद इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, संजीव वर्मा बुक्स आती हैं, उनमें से आपको जो अच्छी लगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। देन बचा अपना ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग बुक है, फिजिकल ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन है, अच्छी बुक है। बट आई रिलाइड ऑन, आई डिड कर्सरी रीडिंग कुछ टॉपिक्स के लिए, बट मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए फोकस की थी। इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक है, आजकल एक पीएमएफ आईएएस की भी बुक आती है, वो भी अच्छी है। उनमें से कोई भी एक ले सकते हो, या कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स भी ले सकते हो। सो दिस इज द बेसिक बुक लिस्ट। एक न्यूज़पेपर रीडिंग पूछते हैं कि न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। सो आई थिंक न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। द करंट अफेयर जो आप कवर करते हो, आप मैगजीन से भी कवर कर सकते हो। आई वोंट नेम एन इंस्टीट्यूट, बट कोई भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन से आप कवर कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी सिमिलर हैं जो मार्केट में है, बट न्यूज़पेपर की रेलेवेंस फिर भी है। वो क्या है कि करंट अफेयर्स एक तो आपके रिवाइज हो जाते हैं जब आप मैगजीन करते हो। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी, आपको डेली अवेयरनेस है, तो वो एक रिवाइज हो जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप उसको एक आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड रहती है, आप मोर अवेयर रहते हो, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, आप मोर कॉन्फिडेंट रहते हो अपनी प्रिपरेशन में, और आपकी रीडिंग हैबिट एक इंप्रूव होती है। जब आप एडिटोरियल्स को पढ़ते हो, आपकी एनालिटिकल पावर, उसको एनालाइज करते हो, वो भी इंप्रूव होती है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन सो न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वर द बुक्स, एंड न्यूज़पेपर गो साइड बाय साइड। न्यूज़पेपर आपको पहले दिन से ही इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट। So this is the resource list, and I told you how to cover कि prelims and mains साथ साथ करनी है, and step by step NCERTs basic books and साथ साथ न्यूज़पेपर करके पहले आपको लग जाएगा 1 डेढ़ साल ये कवर करने में। ऑप्शनल का एक ये क्वेश्चन है कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें, ऑप्शनल आप कैसे सिलेक्ट कैसे करोगे। पहले ऑप्शनल तो मेरे मतलब ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए कि पहले उसके 2-4 पैरामीटर्स हो सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है। जैसे मेरा मेडिकल साइंस, मैंने पहले चुना था कि मैं मेडिकल साइंस ऑप्शनल से मैंने सेलेक्ट किया। हो सकता है, पर मुझे लगा कि वो बहुत वास्ट है, मुझे लगा मैं उसका सिलेबस नहीं रिवाइज कर पाऊंगा टाइम पे। तो फिर मैंने अपनी इंटरेस्ट देखा। तो सेकंड पैरामीटर क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मैं लिटरेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ था, पंजाब से, पंजाबी लैंग्वेज से काफ़ी जुड़ा हुआ था। सिख लिटरेचर मुझे काफ़ी आती थी, सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने फिर पंजाबी लिटरेचर का सिलेबस देखा, मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कविताएं भी पढ़ता रहता था, अमृता प्रीतम की, शिव कुमार बटालवी जी की। तो मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया, एंड मुझे लगा कि वो बेटर है मेरे लिए। तो सब्जेक्ट का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चॉइस आपको ये करना पड़ेगा कि आपके पास आपकी इंटरेस्ट क्या है। ग्रेजुएशन वाला भी ले सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो। अपने इंटरेस्ट के बाद कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आपके इंटरेस्ट के बाद कि आपको कहीं से कंटेंट मिल जाए, उसका सिलेबस देखो उसका खोल के। उसके बाद कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल है। कंटेंट के बाद कि आपको वो सिलेबस देख के, कंटेंट देख के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो कि आपको लग रहा है कि हाँ, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये टॉपिक्स मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। फिर आप जब शुरू करोगे या कर्सरी रीडिंग करोगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि यार ये ऑप्शनल मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस पे मत जाइए। लोग कई कहते हैं ये ऑप्शनल को ज़्यादा स्कोर मिल रहा है, ये ऑप्शनल को कम स्कोर मिल रहा है। आई थिंक वो है एक टू एन एक्सटेंट, बट हाँ, स्केलिंग होती है। तो आई थिंक अगर आप बेस्ट दोगे तो
आपके कोई भी ऑप्शनल में यू कैन स्कोर गुड, ऐसा नहीं है। हर एक ऑप्शनल में 300 प्लस स्कोर्स आए हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ना कि ये ऑप्शनल ज़्यादा चल रहा है तो वो ले लो। वो नहीं क्राइटेरिया होना चाहिए। हर एक ऑप्शनल में 300 प्लस आए हैं, ऐसा नहीं है। कोई पॉपुलर सब्जेक्ट है तो उसमें ज़्यादा रिजल्ट आ जाता है, नंबर ज़्यादा सेलेक्ट हो तो हमें वो लग जाता है। तो ये ऑप्शनल होगा कि जीएस के बाद आप जब थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए फिर आप ऑप्शनल को भी कवर करें, तो उसको भी 3, 4, 5 महीने लग सकते हैं कवर करने में। उसको भी आप उसके नोट्स भी साथ साथ बनाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद है कि मेंस आंसर को कैसे फ्रेम करें, और आंसर राइटिंग की तैयारी मैंने बताया आपको कि आंसर राइटिंग यू स्टार्ट वंस योर सिलेबस इज कंप्लीट, तो उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करो, पहले आप आंसर लिखो, उसको फिर आप नेट पे टॉपर कॉपीज अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपको वो लगता है आप मुझे भी सेंड कर सकते हैं आंसर्स कहीं, जितना मेरे पास टाइम होगा आई कैन ऑल्सो इवेल्युएट। नहीं तो टॉपर कॉपीज अवेलेबल हैं, आप उस पे इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको साथ अपने आंसर्स कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर और आपके आंसर में कैसा स्ट्रक्चर है, आसपास वही टॉपिक्स होते हैं, तो वो आप देख सकते हो, उससे आपको इवैल्यूएशन मिल जाएगी। नहीं तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं है आंसर्स तो खुद भी इवैल्यूएट कर सकते हो। मैंने अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था कभी कोई टेस्ट सीरीज कुछ नहीं ली थी, खुद से पीवाईक्यूज लिखे थे, खुद सॉल्व किया था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट। एंड वो मतलब उसके बाद 2 बार रैंक गिरा है मेरा, वो फर्स्ट बेस्ट रैंक था जब मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं ली थी। सो आप खुद भी कर सकते हो। देन एक क्वेश्चन आता है कोचिंग रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है। सो आई बिलीव कि ये नहीं बोलूँगा कि कोचिंग की मदद नहीं रहती है, कोचिंग के साथ आपको थोड़ी डायरेक्शन पता लग जाती है कि जहाँ कहाँ से क्या करना है, थोड़े नोट्स बन जाते हैं क्लास में बैठ के, रूटीन बन जाती है, इतनी सहायता है कोचिंग से। बट आई थिंक अब आजकल जैसे हम अवेलेबल हैं, ऐसे आई थिंक हमारे टाइम पे भी टॉपर्स वर अवेलेबल। आप कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो सारी गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसे चैनल्स के थ्रू जैसे यूपीएससी टाइम कर रहा है, यू कैन कनेक्ट टू द टॉपर्स, उनकी स्ट्रेटजीज देख देख के आपको पता लग जाएगा कि ये बुक्स पढ़नी है, कैसे करना है। तो आजकल कोचिंग का इतना रेलेवेंस नहीं रहा है, बी ऑनेस्ट, तो करना आपको खुद ही पड़ेगा। अगर कोचिंग ने ही सिलेक्शन करवाने तो सारे ही बच्चे सिलेक्ट हो जाते। तो कोचिंग का इतना ही रेलेवेंस है कि वो रूटीन बना देगा, पर अगर आप में खुद की मोटिवेशन है तो कोचिंग की इतनी रेलेवेंस नहीं है। और आप यूट्यूब पे अच्छे चैनल्स पे सर्च करके कि क्या मटेरियल है, कैसे है, उसके बाद स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर सकते हो बुक्स पढ़ना एंड सिलेबस कंप्लीट करना। तो टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हो, हाँ, बट आई थिंक बेसिकली इतनी रेलेवेंस अब नहीं रही कोचिंग की। तो बट स्टिल इट कैन एड टू योर रूटीन, इतना एड कर सकती है। देन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव टोल्ड यू कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के लिए, तभी आपको पता लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से कम पूछा जाता है। देन था कि इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू कैसा था। सो माय इंटरव्यू व्यूज इन वेरियस 4 अटेम्प्ट्स, देवर डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स। मिता नागराज मैम का था 2 साल, देन दासा सर का रहा है लास्ट ईयर, मेरा संजय वर्मा सर का रहा है बोर्ड। सो इंटरव्यू में दे टेस्ट योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। सो नॉलेज के अलावा भी आपकी जो कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे आप बात करते हैं, कैसे बैठते हो, कैसे आपके ड्रेसिंग एटिकेट्स हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंटली बात पुट कर सकते हो, आप ग्राउंड से कितने जुड़े हो, आप अपने शहर से, अपने स्टेट से कितना जुड़े हुए हो, वो भी चेक हो जाता है। आपकी हॉबीज़ हैं कि सिर्फ किताब में ही हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है थोड़ी, जो अगर आपको कोई सिचुएशन देते हैं आप सॉल्व कर पाते हो उसको, या कुछ सोच पाते हो उसका, उसकी रीजनिंग कर पाते हो, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। आपकी वैल्यूज़ चेक हो जाती हैं, कैसी सोच है आपकी, कितनी सेंसिटिविटी है आप में प्रॉब्लम्स के खिलाफ, प्रॉब्लम्स के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या एक सोल्यूशन दे सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए। तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं इंटरव्यू में, नॉलेज के अलावा। सो दैट इज़ द इंटरव्यू टेस्ट। सो these are the basic things. Then some questions like plan B का क्या है इम्पोर्टेंस। प्लान बी आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, पर आप प्लान बी में इतना ना इन्वेस्ट करें कि आप इसमें अपना बेस्ट ना दे पाए। आई थिंक एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट तो आपको भगवान की कृपा से पहले में सिलेक्शन हो जाए, बट 2-3 अटेम्प्ट दिल लगा के दे देने चाहिए। अगर हाँ 2-3 अटेम्प्ट बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रही तो प्लान बी का फिर सोचना चाहिए। हाँ, दिमाग के पीछे रहना चाहिए कि ये मेरा प्लान बी है। जैसे मेरे लिए था कि मैं एमबीबीएस किया तो मैं डॉक्टर प्रोफेशन परस्यू कर सकता था कभी भी, मेरी पहले में ही सिलेक्शन होगी थैंकफुली, फर्स्ट अटेम्प्ट में होगी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था तब। एंड साथ साथ मैं देता रहा क्योंकि मेरा आईपीएस ही मोटिव था, आईपीएस ड्रीम था बनने का। सो प्लान बी, बट
अगर 2-3 अटेम्प्ट्स में नहीं मिल रही है सफलता, दिल लगा के अगर 2-3 अटेम्प्ट्स दिए हैं पूरी शिद्दत से, फिर आप प्लान बी को सोच सकते हो कि अगर हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो मैं प्लान बी के साथ फिर कई बोलते हैं कि जॉब के साथ कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को कि नहीं। तो ये है कि अगर आपने हाँ 2-3 साल की तैयारी कर ली है अब एंड फिर भी नहीं हो रहा है, फिर आप जॉब के साथ मेरे मुताबिक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को, बिकॉज़ आपने 1-2-3 साल की तैयारी कर ली है। आपको बस अब जॉब के साथ उसको ब्रश अप ही करना है। तो आई थिंक दिस इज़ पॉसिबल। उसके बाद आप प्लान बी को फ़ोकस करके साथ-साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन इज़ डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? ये तो है कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए रीज़न पता होना चाहिए। जैसे मेरे लिए था कि मेरे फ़ादर का अनफ़िनिश्ड ड्रीम है। कुछ मेरे लिए मुझे यूनिफ़ॉर्म का बहुत पैशन था एंड मेरे मैटरनल अंकल भी पुलिस सर्विस में हैं, तो उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी कि मुझे भी समाज की सेवा करनी है एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर। एक अच्छा पुलिस वाला बनना है, पुलिस की इमेज सुधारनी है और लोगों को यकीन करवाना है कि पुलिस उनके लिए ही है। तो ऐसी मोटिवेशन होनी चाहिए आपको, कोई भी हो सकती है। इट मे बी आपको कुछ अच्छा एजुकेशन में करना है, हेल्थ में करना है, कोई और सेक्टर में करना है, जहाँ आपको अपनी रिस्पेक्ट के लिए करना है। इट कैन बी एनी रीज़न जो आपको फ्यूल करे। तो व्हाटएवर रीज़न फ्यूल्स यू, वो आप उस पे फ़ोकस करोगे तो आप डिस्ट्रैक्शंस को और कंट्रोल कर पाओगे। तो सेकेंडली डिस्ट्रैक्शंस आर देयर ऑब्वियसली। आपको 24 घंटे नहीं पढ़ना है। अगर आप 8-10 घंटे, 6-7 घंटे पढ़ रहे हो दिन में तो बहुत हैं, सफिशिएंट हैं। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ भी परस्यू करें, क्योंकि मैंने बताया आपको ये लॉन्ग हो सकती है प्रिपरेशन। तो अपनी हॉबीज़ को साथ-साथ परस्यू करो। जैसे आई यूज्ड टू परफॉर्म भांगड़ा, तो आई हैव बीन अ नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर। बास्केटबॉल मैं खेलता रहा हूँ। हाँ, हो सकता है उसका आप उसको हॉबीज़ को कम समय दे पाएँ, बट आप अपनी हॉबीज़ को ज़रूर परस्यू करते रहिए। देन क्वेश्चन इसकी रिवीजन कैसे करें? सो रिवीजन के लिए आई बिलीव वंस यू कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट वन सब्जेक्ट, जब आप दूसरे सब्जेक्ट पे जाएँ या 1-2 सब्जेक्ट अगर कवर हो गए हैं, तीसरे पे जाएँ, फिर आप साथ-साथ दोबारा फर्स्ट सब्जेक्ट उठा सकते हैं, उसको रिवाइज़ साथ-साथ कर सकते हैं। उसके नोट्स जो आपके बने हुए हैं बना के उनको शॉर्ट करते रहो, उनको शॉर्ट कीवर्ड्स में बना के उनको रिवाइज़ करते रहो। दोबारा-दोबारा पढ़ोगे आपको फिर वो याद होता रहेगा। पहली बार में नहीं सारा याद होगा। तो 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा एक बुक को या एक नोट्स को, फिर आपको वो बेटर याद रहेगा। टाइम टेबल कैसे बनाएँ? ये भी एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। टाइम टेबल के लिए आई थिंक आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। अगर मैं बोलूँ कि मैं सुबह कोई बोले सुबह 5 बजे उठता है, तो उसको उसके लिए सूटेबल टाइम टेबल है। मैं रात लेट तक पढ़ता था, तो मेरे लिए वो डिफरेंट। तो हर एक का टाइम टेबल अलग होगा। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाइए कि यार मैं जहाँ सुबह उठता हूँ अच्छी, तो मेरी तब एनर्जी ज़्यादा होती है, जब मैं रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ। उसके मुताबिक कि मुझे दिन के 6-7 या 8 घंटे या 10 घंटे जैसे भी जितनी पढ़ने हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टाइम कि वैसे करने हैं। कोई जॉब कर रहा है तो उसको शाम का टाइम ज़्यादा अवेलेबल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए कि ये टाइम स्लॉट में मैं ये करूँगा, इस टाइम स्लॉट में मैं अखबार पढ़ूँगा, इस टाइम स्लॉट में मैं जीएस करूँगा, इस टाइम स्लॉट में मैं ऑप्शनल को दूँगा। तो ऐसे करके उसको डिवाइड कर सकते हो। तो ये हैं फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। देन है कि बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। मैप्स कैसे करें? तो ये भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैप्स के लिए आप ऑक्सफोर्ड एटलस होती है स्कूल की, एटलस, वो फ़ॉलो कर सकते हैं। फिर न्यूज़पेपर में जो-जो शहर आते रहते हैं न्यूज़ में, जैसे आजकल मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया न्यूज़ में है, इज़राइल है, ईरान है, ये न्यूज़ में है। तो वहाँ पे कौन-कौन से पोर्ट्स हैं, जैसे हाइफ़ा पोर्ट आजकल न्यूज़ में है। कौन-सा पोर्ट है, कौन से रिवर्स हैं, कौन-सी सी है न्यूज़ में, कोई डेज़र्ट है न्यूज़ में, कोई और है, जैसे अगर जी7 समिट अब कनाडा हो रहा है, तो वहाँ पे और कौन-कौन से शहर हैं। जहाँ प्रधानमंत्री जी कहाँ-कहाँ पे जा रहे हैं, अभी सिप्रस गए हैं, तो सिप्रस की लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, मेडिटेरेनियन के पास है। तो एग्ज़ाम्पल से बता रहा हूँ कि जो न्यूज़ में चल रहा है वही लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको भी देखते रहो कि ये प्लेस पड़ी, उसको जाके मैप में देख लिया कि कहाँ पे है, अगर नहीं पता। तो ऐसे करके आप मैप्स को तैयारी कर सकते हैं। सो दीज़ वर द की क्वेश्चन्स। सर्विस प्रोफाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुलिस सर्विस मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस था।